اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمر بن العاص کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر بن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی۔ اب دو مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم نہ جما سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے ان کی تعداد 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کچھ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امیر المومنین نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے لڑنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المومنین کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المومنین نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچے جہاں مدینہ کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مصنع بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ایک سالار نے کہا اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے لیے گزرنے کے قابل ہو۔ ایک اور سالار بولا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، رافع بن عمیرہ۔ وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا سکتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اسے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے۔ رافع نے کہا زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ
उन्होंने अपना बनाया हुआ नक्शा उसके आगे रखा और पूछा कि वो रास्ता कौन सा है। राफे बिन उमैरा ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, ये कराकर है। यहाँ एक नखलिस्तान है जो इतना सरसब्ज व शादाब है कि मुसाफिरों पर अपना जादू तारी कर देता है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सुआ को जाता है। सुआ में पानी इतना ज्यादा है कि सारा लश्कर और लश्कर के तमाम जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन ये पानी उसे मिलेगा जो सुआ तक जिंदा पहुँच जाएगा। ऊपर सूरज की तपिश देखो, दिन को कितना चल सकोगे, कितनी दूर तक चल सकोगे ये मैं नहीं जानता। इतने ऊंट लाओ कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार हो। इब्न वलीद, तुम सहरा के बेटे हो मगर इस सहरा से नहीं गुजर सकोगे। राफे बिन उमैरा ने जो रास्ता बताया ये मौरिखों की तहरीरों के मुताबिक 120 मील था। ये 120 मील का फासला तय करने से मंजिल तक कई दिन जल्दी पहुंचा जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वो सालार थे जो मुश्किलात की तफसीलात सुनकर नहीं बल्कि मुश्किलात में पढ़कर अंदाजा किया करते थे कि उनकी शिद्दत कितनी कुछ है। उनके दिमाग में सिर्फ ये समाया हुआ था कि मदीना का लश्कर मुश्किल में है और उसकी मदद को पहुंचना है। सीधे रास्ते से फासला 600 से 700 मील तक बनता था। राफे के बताए हुए रास्ते से जाने से फासला कम रह जाता, मगर राफे बताता था कि उस खतरनाक रास्ते से जाओ तो 5-6 दिन ऐसी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है जो इंसान क्या बर्दाश्त करेगा, घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी तो मिल ही नहीं सकता और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि मई का महीना था जब रेगिस्तान जल रहे होते हैं। एक सालार ने कहा, खुदा की कसम इब्न वलीद, तू इतने बड़े लश्कर को उस रास्ते पर नहीं ले जाएगा जो तबाही का और बहुत बुरी मौत का रास्ता होगा। एक और सालार ने कहा, और जिसका दिमाग सही होगा वो इस रास्ते पर नहीं जाएगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा, हम इसी रास्ते से जाएंगे, जिसमें अजीब सी संजीदगी थी। राफे बिन उमैरा ने कहा, हम पर फर्ज है कि तेरी इताअत करें, लेकिन एक बार फिर सोच लो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं वो हुक्म देता हूँ जो हुक्म अल्लाह मुझे देता है। हारते वो हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं। अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल है और फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबतें आएंगी हम क्यों ना उन्हें भी बर्दाश्त करें। ये वाकया और ये गुफ्तगू तबरी ने जरा तफसील से बयान की है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सालारों ने उनके अज़्म की ये पुख्तगी देखी तो सबने पुरजोश लहजे में लब्बैक कहा। उनमें से किसी ने कहा, इब्न वलीद, तुझ पर अल्लाह का करम, वो कर जो तू बेहतर समझता है, हम तेरे साथ हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सफर पर रवानगी से पहले एक हुक्म ये दिया कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार होगा, घोड़े सवारों के बगैर पीछे पीछे चलेंगे। दूसरा हुक्म ये कि औरतों और बच्चों को मदीना भेज दिया जाए। सालारों को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि तमाम लश्कर को अच्छी तरह बता दें कि वो ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर पहले कभी कोई लश्कर नहीं गुजरा। हर किसी को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। मई का महीना ऊंटों की फराहमी में गुजर गया। जून 634 ईस्वी रब्बिउल आखिर 13 हिजरी का महीना शुरू हो गया। अब तो सहरा जल रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। उनके साथ 9000 मुजाहिदीन थे जो उस खुदकुश सफर पर जा रहे थे। कराकर तक सफर वैसा ही था जैसा उस लश्कर का हर सफर हुआ करता था। वो सफर कराकर से शुरू होना था जिसे मुसलमान मौरिखों ने और यूरोपी मौरिखों ने भी तारीख का सबसे खतरनाक और भयानक सफर कहा है। मुसन्ना बिन हारिसा कराकर तक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गए। मुसन्ना को हीरा वापस आना था। कराकर से जिस कदर पानी साथ ले जाया जा सकता था मशकीजों में भर लिया गया। मटके भी इकट्ठे कर लिए गए थे, उनमें भी पानी भर लिया गया। अगली सुबह जब लश्कर रवाना होने लगा तो मुसन्ना बिन हारिसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से और उसके सालारों से गले लग के मिले। याकूबी और इब्न यूसुफ ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा पर रिक्कत तारी हो गई थी। उनके मुंह से कोई दुआ न निकली, आंखों से आंसू निकल आए। दुआएं उनके दिल में थीं। उन्हें यकीन नहीं था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को और उनके 9000 मुजाहिदीन को फिर कब देख सकेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट पर सवार होने लगे तो राफे बिन उमैरा दौड़ता आया। इब्न वलीद, राफे ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों कंधों पर हाथ रख कर कहा, अब भी सोच ले, रास्ता बदल ले, इतनी जानों से मत खेल। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से से कहा, इब्न उमैरा, अल्लाह तुझे गारत करे, मुझे अल्लाह की राह से मत रोक, या मुझे वो रास्ता बता जो मदीना के लश्कर तक जल्दी पहुंचा दे। तू नहीं जानता, तू हट मेरे सामने से और हुक्म मान जो मैंने दिया है। राफे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे से हट गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट पर सवार हुए और लश्कर चल पड़ा। सबसे आगे राफे का ऊंट था, उसे राहबरी करनी थी। मुसन्ना खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अमीरुल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि अब कोई माँ खालिद जैसा बेटा पैदा नहीं करेगी। वही सहरा जो रात को खुनक था सूरज निकलते ही तपने लगा और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था।
उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान न सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपिश के लरसते पर्दे में लरसता कांपता या लटके हुए बारीक कपड़े की तरह लहरों की तरह हिलता नजर आता। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा था कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपिश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समंदर था बल्कि ये आग का समंदर था और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इस तरह हौलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और नशेबो फराज का इलाका शुरू हो गया। ये रेत और मिट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खुले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। उस शाम लश्कर ने पानी पिया तो ये हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर ये तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन कयामत से कम न था। पानी की एक बूंद न थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है जो जहन को बिगाड़ देता है। ये वो कैफियत होती है जब शराब नजर आते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समंदरी जहाज नजर आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर भी बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में किसी ने चिल्ला कर कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूद कर एक तरफ दौड़ पड़ा। 3-4 मुजाहिद उसके पीछे गए। राफे बिन उमैरा ने दूर से कहा, इसे अल्लाह के सुपुर्द करो। सहरा ने कुर्बानियां वसूल करनी शुरू कर दी हैं। इसके पीछे मत दौड़ो, सब मरोगे। थोड़ी देर के बाद एक मुजाहिद बेहोश होकर ऊंट से गिरा। वो उठा और ऊंट की तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। कोई भी उसके पीछे न गया। पीछे न जाने की एक वजह ये भी थी कि सबकी आंखें बंद थीं। एक रेत की चमक और तपिश आंखें खोलने ही न देती। चौथा दिन जो पानी के बगैर गुजर रहा था, सही मानों में जहन्नम के दिनों में से एक था। ऐसे लगता था जैसे सूरज और नीचे आ गया हो। पहले तो सब खुद आंखें बंद रखते थे क्योंकि चमक और तपिश आंखों को जलाती थी। अब आंखें खुलती ही नहीं थी। ऊंट तक हारने लगे थे। कोई ऊंट बड़ी खौफनाक आवाज निकालता, बैठने के लिए अगली टांगों को दोहरा करता और एक पहलू पर लुढ़क जाता। सवार भी गिरता मगर उसमें उठने की हिम्मत न होती। लश्कर में हर किसी की आंखें बंद थीं और दिमाग बेकार हो गए थे। उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि उनका कोई साथी ऊंट पर से गिर पड़ा है या ये कि उसका ऊंट भी गिर पड़ा है और उसे उठाकर अपने साथ ऊंट पर बिठा लें। शराब का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि लश्कर में क्या हो रहा है। वो तो अज़्म और ईमान की कुव्वत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी और ये ऊंट थे जो चले जा रहे थे। अगर ऊंट रुक जाते तो लश्कर का कोई एक भी फर्द एक कदम न चल सकता। घोड़ों के मुंह खुल गए थे और जबानें लटक आई थी। मुजाहिदीन की जबानें सूज गई थी। हलक में कांटे चुभ रहे थे। इस वजह से उनके मुंह भी खुल गए थे। वो तो अब लाशों की मानंद हो गए थे। ऊंटों की पीठों पर अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उनमें से कोई न कोई गिर पड़ता। अब वो आलमे नज़ा के करीब पहुंच रहे थे। जिस्मों की नमी खुश्क हो चुकी थी। रात को लश्कर रुका। तमाम रात मुजाहिदीन ने जागते गुजारी। जिस्मों के अंदर सुइयां चुभती थी। जबानों की हालत ऐसी थी जैसे मुंह में किसी ने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया हो। सफर के आखिरी दिन का सूरज तुलू होकर मुजाहिदीन को मौत का पैगाम देने लगा। कई मुजाहिदीन ऊंटों पर बेहोश हो गए। वो खुशकिस्मत थे जो लुढ़क कर गिरे नहीं। ये लश्कर अब एक लश्कर की तरह नहीं जा रहा था। ऊंट बिखर गए थे। बाज बहुत पीछे रह गए थे। कई दाएं और बाएं फैल गए थे। रफ्तार खतरनाक हद तक सुस्त हो गई थी। ये पानी के बगैर दूसरा दिन था। ये एक मौजज़ा था कि वो अब भी जिंदा थे। कौन सी ताकत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी? वो अल्लाह का वो पैगाम था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे और ये मुजाहिदीन इंसानियत की निजात के लिए अल्लाह का ये पैगाम जमीन के गोशे गोशे तक पहुंचाने के लिए सहरा की आग में से गुजर रहे थे। अल्लाह ने उन्हें बड़ी ही अजियतनाक आजमाइश में डाल दिया था।
और उसी की जात उन्हें जिंदा रखे हुए थी। गुरूब आफ्ताब से बहुत पहले खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ऊंट को राफे बिन उमैरा के ऊंट के करीब ले गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज जबान से निकाले, इब्ने उमैरा, क्या अब हमें उस चश्मे पर नहीं होना चाहिए था जिसका तूने जिक्र किया? सुआ एक ही मंजिल दूर रह गया होगा। राफे बिन उमैरा ने कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे वलीद के बेटे, मैं आशोबे चश्म का मरीज था, इस सहरा ने मेरी आंखों का नूर खत्म कर दिया है, मैं अब कैसे देखूं? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या तू अंधा हो गया है? जो तू देख सकता था वो हम में से कोई भी नहीं देख सकता, क्या हम भटक गए हैं? मौरिख वाक़िदी और तबरी ने लिखा है कि राफे बिन उमैरा की बीनाई खत्म हो गई थी। उसने जहन में कुछ हिसाब रखा हुआ था। उन दोनों मौरिखों ने उसके सही अल्फाज अपनी तहरीरों में नकल किए हैं। राफे ने कहा, इब्ने वलीद, लश्कर यहीं रोक ले, कुछ आदमियों को आगे भेज, उन्हें कहे कि वो औरतों के पिस्तानों की शक्ल के 2 टीलों को तलाश करें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ आदमियों को आगे भेज दिया। ये आदमी जल्द ही वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वो 2 टीले दिखाए हैं। राफे ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अल्लाह के करम से वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, लश्कर को आगे ले चलो। राफे बिन उमैरा ने कहा, इब्ने वलीद, अब अपने आदमियों से कह कि एक दरख्त को ढूंढें जिस पर कांटे ही कांटे हों, और वो कोई ऊंचा दरख्त नहीं होगा, वो दूर से इस तरह नजर आएगा जैसे कोई आदमी बैठा हुआ हो। ये दरख्त उन 2 टीलों के दरमियान होगा। आदमी घूम फिर कर वापस आ गए और उन्होंने ये जानका खबर सुनाई कि उन्हें टीलों के दरमियान और इर्द गिर्द बल्कि दूर दूर तक ऐसा कोई दरख्त नजर नहीं आया। राफे बिन उमैरा ने कहा, समझ लो कि हम सब मर गए। उसने कुछ सोचकर और कदरे झुंझला कर कहा, एक बार फिर जाओ, दरख्त मिल जाएगा, रेत के अंदर ढूंढो। आदमी फिर गए, बर्छियां और तलवारें रेत में मार मार कर मतलूबा दरख्त खोजने लगे। एक जगह उन्हें रेत की ढेरी नजर आई। रेत हटाई तो वहाँ दरख्त का टुंड मुंड सा तना जाहिर हुआ। ये खारदार था। राफे ने कहा, उखाड़ दो इस दरख्त को और इस जगह जमीन को खोद दो। जमीन इतनी ज्यादा नहीं खोदी गई थी, लेकिन पानी उमड़ पड़ा और नदी की तरह बहने लगा। उस गड्ढे को खोद खोद कर खुला करते चले गए ताकि ये एक वसी तालाब बन गया। लश्कर के मुजाहिदीन उस पानी पर टूट पड़े। वाक़िदी लिखता है कि ये पानी इतना ज्यादा था कि इतने बड़े लश्कर ने पिया, फिर ऊंटों और घोड़ों ने पिया, तब भी ये उमड़ता रहा। मुजाहिदीन ने मशकीज़े भर लिए, तब उन्हें ख्याल आया कि मालूम नहीं उनके कितने साथी पीछे रह गए हैं। ऊंट भी तरोताजा हो चुके थे और इंसान भी। अपने साथियों का ख्याल आते ही कई मुजाहिदीन ऊंटों पर सवार हुए और वापस चले गए। वो मंजर बड़ा हौलनाक था। जगह जगह कोई न कोई मुजाहिद और कोई ऊंट या घोड़ा रेत पर बेहोश पड़ा जल रहा था। मुजाहिदीन ने उनके मुंह में पानी डाला और उन्हें अपने साथ ले आए। बाज मुजाहिदीन शहीद हो चुके थे, उन्हें उनके साथियों ने वहीं दफन कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने राफे बिन उमैरा को गले से लगाकर कहा, इब्ने उमैरा, तूने लश्कर को बचा लिया है। राफे ने कहा, इब्ने वलीद, अल्लाह ने बचाया है। मैं इस चश्मे पर सिर्फ एक बार आया था और ये 30 साल पहले का वाक़या है। मैं उस वक्त कमसिन लड़का था और मेरा बाप मुझे अपने साथ लाया था। इस चश्मे को अब रेत ने छुपा लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि यहाँ चश्मा मौजूद है। ये अल्लाह का खास करम है कि चश्मा मौजूद था। उन मुजाहिदीन की मुहिम इस सफर पर खत्म नहीं हो गई थी। ये तो आजमाइश की एक कड़ी थी जिसमें से वो गुजर आए थे। उनका असल इम्तिहान अभी बाकी था। शाम की सरहद तक पहुंचने के लिए भी 2 मंजिलें बाकी थीं, लेकिन वो कठिन नहीं थी। असल मुश्किल ये थी कि रूमी उनके मुकाबले के लिए और उन्हें शाम की सरहदों से दूर ही खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी कर रहे थे, जिसके मुकाबले में मुसलमानों की ये नफरी कोई हैसियत नहीं रखती थी। इस्लामी फौज की नफरी तो पहले ही कम थी और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु 9000 नफरी की जो कुमक लेकर गए थे, उसके हर फर्द को बिल्कुल खुश्क और नाकाबिल बर्दाश्त हद से भी ज्यादा गर्म सहरा ने 5 दिनों में चूस दिया था। उनके जिस्मों में दमखम खत्म हो चुका था। उनमें कुछ तो शहीद हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिन पर सहरा ने बहुत बुरा असर किया था। वो 8-10 दिनों के लिए बेकार हो गए थे। बाकी नफरी को भी 2-3 दिन आराम की जरूरत थी, लेकिन अहवालो कवायफ ऐसे थे कि उन्हें आराम की मोहलत नहीं मिल सकती थी। दुश्मन बेदार और तैयार था और ये बड़ा ही ताकतवर दुश्मन था। उस वक्त के मुल्क शाम पर रूमी हुक्मरान थे और उनकी फौज उस दौर की मशहूर ताकतवर और मजबूत फौज थी। उस दौर में 2 ही फौजें मशहूर थी, एक फारिस की फौज और दूसरी रूमियों की। दूर दूर तक इन दोनों फौजों की धाक बैठी हुई थी। नफरी ज्यादा होने के अलावा उनके हथियार बरतर थे। रूम की फौज के मुतालिक तारीख नवीसों ने लिखा है कि जिस रास्ते से गुजरती थी उस रास्ते की बस्तियां खाली हो जाती। फारिस की जंगी ताकत को तो मुसलमानों ने बड़ी थोड़ी नफरी से खत्म कर दिया
दिया था और इराक के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया था। अब मुसलमान दूसरी बड़ी जंगी ताकत को ललकार रहे थे। रूमी अकेले नहीं थे, उनका इत्तेहादी गुस्सान का बड़ा ही ताकतवर कबीला था। रूमी जब उन इलाकों में आए थे तो गुस्सान वाहिद कबीला था जिसने रूमियों का मुकाबला किया। ये मुकाबला चंद दिनों या महीनों पर खत्म नहीं हो गया था, बल्कि गुस्सानी बड़ी लंबी मुद्दत लड़ते रहे। रूमियों ने शाम के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया तो भी गुस्सानी लड़ते रहे। वो रूमी फौज की सरहदी चौकियों पर शबखून मारते रहते और कभी रूमियों के मकबूजा इलाके में दूर अंदर जाकर भी हमले करते। गुस्सानी और रूमियों की ये जंग नस्ल बाद नस्ल चलती रही। आखिर रूमियों को तस्लीम करना पड़ा कि गुस्सानी एक कबीला नहीं, कौम है और उन्हें तहे तेग नहीं किया जा सकता। चुनाचे रूमियों ने गुस्सानियों की अलग कौमी हैसियत तस्लीम कर ली और उन्हें शाम का कुछ इलाका देकर उन्हें इस तरह की खुद मुख्तारी दे दी कि उनका अपना बादशाह होगा और वो किसी हद तक रूम के बादशाह के मातहत होगा। ये बड़ा पुराना वाकया है। वक्त गुजरने के साथ गुस्सानी कबीला ऐसी सूरत इख्तियार कर गया कि उसके शाही खानदान को रोम का शाही खानदान समझा जाने लगा। आज के उर्दन और जनूबी शाम पर गुस्सानियों की हुक्मरानी थी। ये भी रूमियों की तरह एक बादशाही थी जिसकी फौज मुनज़्ज़म और ताकतवर थी और उसे हथियारों के मामले में भी बरतरी हासिल थी। इस बादशाही का पाया तख्त बसरा में था। मुसलमान रूमियों और गुस्सानियों को ललकार कर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे थे।